السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی عالمی خبرنامہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ غزہ کے شمالی حصے میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 3 درجن سے زائد فلسطینی شہید۔ لبنان میں بھی مسلسل حملے اور شہادتیں۔ وزیر اعظم اسپین ہندوستان کے دورے پر، وزیر اعظم مودی کے ساتھ ملاقات اور نئے فضائی یونٹ کا افتتاح۔ ہندوستان نے 100 ممالک کو 21,000 کروڑ روپے کے اسلحہ فروخت کیے۔ امریکہ، آرمینیا اور فرانس سب سے بڑے خریدار۔ ہم صہیونی حکومت کی جارحیت کا مناسب جواب دیں گے، ایران کے صدر کا بیان۔ کہا، ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق کا کریں گے تحفظ۔ چین کا ماضی میں آبادی پر قابو پانے کا فارمولا سردرد بن گیا۔ آبادیاتی بحران کا مسئلہ چین میں سنگین شکل اختیار کر گیا۔ اور کرسٹیانو رونالڈو کا دیوانہ فین، ملاقات کے لیے 7 مہینے میں 13,000 کلومیٹر سائیکل سے کیا سفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ غزہ کے شمالی حصے میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 3 درجن سے بھی زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، تو لبنان پر بھی اسرائیل کے مسلسل حملے جاری ہیں، جس میں شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ پیش ناظرین خصوصی رپورٹ۔ غزہ کے شمالی حصے میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں 3 درجن سے بھی زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اس آرٹیکل میں غزہ، اسرائیل اور لبنان میں 27 اکتوبر کو پیش آنے والی تازہ ترین صورتحال کی تفصیلات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ غزہ کے شمالی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں 30 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جبالیہ میں کیے گئے گھر پر فضائی حملے میں 20 افراد کی موت ہو گئی۔ جبالیہ غزہ پٹی کے 8 بڑے ریفیوجی کیمپوں میں سے ایک ہے۔ یہ علاقہ گزشتہ 3 ہفتوں سے اسرائیلی فوج کی شدید کارروائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ سٹی میں واقع شاتی کیمپ کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں 4 افراد مارے گئے اور دیگر 20 زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق اس اسکول میں بے گھر فلسطینیوں کے خاندانوں نے پناہ لے رکھی تھی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جبالیہ میں 40 سے بھی زائد افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا۔ بڑی تعداد میں عسکری سامان بھی ملا ہے۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فورسز نے کہا کہ اس کی افواج نے وسطی غزہ میں ایک سیل کو ختم کر دیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی کے مطابق غزہ میں بیت اللحیہ کے قریب قصبے میں ایک رہائشی علاقے پر ہفتے کو کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق وسطی اسرائیل میں ایک ٹرک کے بس اور قریب اسٹاپ سے ٹکرانے کے نتیجے میں کم از کم 35 افراد بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے اسے ایک حملہ قرار دیا اور کہا، حملہ آور اسرائیل کا عرب شہری تھا اور جائے وقوع پر موجود شہریوں نے ٹرک ڈرائیور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ حملہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ہوا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق ملک کے جنوبی شہر سیدا میں اتوار کو اسرائیلی حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک، 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایک ایسے علاقے کی عمارت پر کیا گیا جسے گزشتہ مہینے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ چھڑنے کے بعد پہلی مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد دیہاتوں کے رہائشیوں کو فوری طور پر نکل جانے کے احکام جاری کیے ہیں۔ جنوبی لبنان میں عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں اسرائیل کے مزید 4 فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مرنے والوں میں فوجی ریزرو روسٹ تھے جن کی عمریں 29 سے 43 سال کے درمیان تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5 اضافی فوجی بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو ہونے والے اسرائیل پر حماس کے حملے اور پھر اس کے نتیجے میں غزہ اور لبنان میں چھڑنے والی جنگ میں اب تک اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کی تعداد 700 سے بھی زیادہ ہے، تو پھر غزہ میں شہداء کی تعداد تقریباً 50,000 سے بھی زیادہ ہے، تو زخمیوں کی تعداد 1 لاکھ کو تجاوز کر گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान में दिफाई साजो सामान की तैयारी का निज़ाम नई बुलंदियों को छू रहा है और मुल्क में काम का एक नया कल्चर उभरा है। मोदी ने दरअसल ये बात हिंदुस्तानी फिजाई सर्विस के लिए नए ट्रांसपोर्ट सैयारे C-295 की नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के इफ्तिताह के दौरान कही। ये यूनिट टाटा ग्रुप और यूरोप की एयरबस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के इश्तिराक से कायम किया गया है और इस खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने भी शिरकत की। समिट में हम सब ने आपकी कमी महसूस की। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और मैं उस वडोदरा में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसने मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बाद में मैं प्रधानमंत्री बना, तो मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही प्रारंभ में। ये और भी विशेष है कि आप मेरे होम स्टेट गुजरात आए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं ये मेरा होम स्टेट है, बल्कि इसलिए कि गुजरात त्योहार और उत्सव की धरती माना जाता है। दीपावली प्रकाश, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा और नए प्रारंभ का प्रतीक है। उसी प्रकार आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। आज C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। भारतीय युवा टैलेंट स्पेन के ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन गोल्स में योगदान दे रहा है। लोगों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इस वर्ष स्पेन के बार्सिलोना में भारत ने नया कॉन्सुलेट खोला है। बेंगलुरु में स्पेन के नए कॉन्सुलेट खोलने के आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी और इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्पेन के वजीर आजम ने एक साथ नई फैक्ट्री का दौरा किया। ये फैक्ट्री हिंदुस्तान में निजी शोबे में किसी भी फौजी तैयारी के लिए पहली मुकम्मल असेंबल की सहूलत है। मोदी ने इस मौके पर कहा कि स्पेन के वजीर आजम सांचेज का दौरा हिंदुस्तान का यह पहला दौरा है और हिंदुस्तान और स्पेन के दरमियान शराकतदारी एक नई बुलंदियों को छू रही है। उन्होंने कहा ये नया कारखाना न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी तक़वियत देगा। गुजरात के वडोदरा में दोनों वज़ीर आज़म ने इस मौके पर एक रोड शो में भी हिस्सा लिया। और एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने साल 2023 और 24 में दूसरे ममालिक को 21,000 करोड़ रुपए के असलाह फरोख्त किए हैं, जिसमें आर्मीनिया सबसे बड़ा खरीदार है। अज़रबैजान के साथ जंग के बाद से आर्मीनिया बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से असलाह खरीद रहा है। आर्मीनिया ने स्काई एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 155 मल्टीमीटर आर्टिलरी गन जैसे तैयार शुदा असलाह हिंदुस्तान से खरीदे हैं। अमेरिका, फ्रांस और आर्मीनिया हिंदुस्तानी दिफाई बरामदात के सबसे बड़े खरीदार के तौर पर सामने आए हैं।
हुकूमत इराक ने ईरान पर हमले के दौरान इराकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करवाई है। हुकूमत इराक के तर्जुमान बासम अवादी ने अपने बयान में कहा, 26 अक्टूबर को ईरान पर हमले के दौरान इराकी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल को एहतजाजी नोट भेजा गया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने कहा है कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और इसराइली तजारत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पज़ेशकियान ने ईरान के दारुलहुकूमत तेहरान मुनक़िदा काबीनी इजलास से खिताब में ईरान पर इसराइली हमले पर बात की। उन्होंने कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी कौम और मुल्क के दिफा करेंगे। हम सियोनी हुकूमत को उसकी जारहियत का मुनासिब जवाब देंगे। जापान में होने वाले क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतख़ाबात में हुक्मरान इत्तेहाद की अक्सरियत खत्म हो गई है। अपोजिशन ने गुज़िश्ता इंतख़ाबात के मुकाबले में 98 सीटें ज्यादा हासिल की हैं, ताहम वो भी हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा नशिस्तें हासिल न कर सकी। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त होने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात में कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी और 15 सालों में पहली बार जापान की हुक्मरान जमात लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऐवान ज़ेरी में भी अक्सरियत खो बैठी। उधर फिलिपाइन में समंदरी तूफान ट्रॉमी से अमवात की तादाद बढ़कर 120 हो गई है, जबकि 36 अफराद ताहाल लापता बताए जाते हैं। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ट्रॉमी से होने वाली हलाकतों में इजाफा हो गया है। हलाकतों की तादाद अब 120 हो गई है। तूफान के बाद रिहायशी इलाकों में सैलाब और शदीद बारिशों की वजह से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। घरों में पानी जमा हो जाने से शहरी घरों की छतों पर महसूर होकर रह गए हैं। फिलिपाइन की नेशनल डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक तूफान के बायस तकरीबन 5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी की है। समंदरी तूफान ट्रॉमी 24 अक्टूबर को फिलिपाइन से टकराया था। अब रुक करते हैं नाज़रीन एक दिलचस्प खबर का, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका शुमार दुनिया फुटबॉल के अजीम तरीन खिलाड़ियों में होता है। पूरी दुनिया में रोनाल्डो को दीवानगी की हद तक पसंद किया जाता है और मुख्तलिफ ममालिक में इनके करोड़ा मद्दा पाए जाते हैं, जो इनका खेल देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब इस पुर्तगाली खिलाड़ी का एक ऐसा फैन सामने आया है जिसने अपने इस आइडल से मिलने के लिए साइकिल पर 7 महीनों में 13,000 किलोमीटर का सफर तय किया। रोनाल्डो के 24 साल मद्दा गोंग ने चीन से सऊदी अरब का सफर साइकिल से तय किया। अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिलने की ख्वाहिश में गोंग ने इतनी तवील दूरी तक साइकिल से सफर किया और उसने करीब 7 महीनों में अपना सफर मुकम्मल किया। गोंग ने 18 मार्च को अपना सफर शुरू किया था। 20 अक्टूबर को अल-नसर फुटबॉल क्लब के सामने क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात की। उधर चीन का माजी में आबादी पर काबू पाने का फॉर्मूला खुद उसके लिए सरदर्द बन गया है, यानी कि अब वहां आबादियाती बहरान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। चीन में शरह पैदाइश में जबरदस्त गिरावट की वजह से चीन के हजारों मशहूर किंडरगार्टन बंद हो गए हैं, तो वहीं बुजुर्गों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इसलिए किंडरगार्टन की जगह ओल्ड एज होम यानी कि ज़ईफों के घर खोले जा रहे हैं। कई किंडरगार्टन को बुजुर्ग लोगों के लिए देखभाल के मराकज़ में तब्दील कर दिया गया है। कई मुलाजिमीन ने बुजुर्गों की देखभाल के लिए अपनी नौकरियां तक बदल ली हैं। आखिर में टाइम्स पर डालते हैं एक और नजर। गजा के शुमाली हिस्से में इसराइली फौज के ताज़ा हमलों में 3 दर्जन से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। लेबनान में भी मुसलसल हमले और शहादतें। वजीर आजम स्पेन हिंदुस्तान के दौरे पर, वजीर आजम मोदी के साथ मुलाकात और नए फिजाई यूनिट का इफ्तिताह। हिंदुस्तान ने 100 ममालिक को 21,000 करोड़ रुपए के असलाह फरोख्त किए। अमेरिका, आर्मीनिया और फ्रांस सबसे बड़े खरीदार। हम सेहूनी हुकूमत की जारहियत का मुनासिब जवाब देंगे। ईरान के सदर का बयान, कहा हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने हुकूक का करेंगे तहफ़्फ़ुज़। चीन का माजी में आबादी पर काबू पाने का फॉर्मूला सरदर्द बन गया। आबादियाती बहरान का मसला चीन में संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दीवाना फैन मुलाकात के लिए 7 महीने में 13,000 किलोमीटर साइकिल से किया सफर।
اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔